Welcome to ACM classes. Part 4 revision class for CTET exam, which is going to happen tomorrow and day after. पहली तीन videos के अंदर we have given you the basic concepts from NCERT from class 1st till class 8 book 1 maths book 1. Now this is the 8th class maths book 2, and again repeating it, why we are taking this thing, the books of NCERT into consideration for the concepts, because जो पिछले साल के पेपर्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो सारे बहुत बेसिक नेचर के हैं, बहुत इजी पेपर्स हैं, एंड वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सारे के सारे कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी से निकले हुए हैं, चाहे वो पेडागोगी हो चाहे वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो. सो वी आर ऑन द वीडियो नंबर 4 एंड लेट्स स्टार्ट विद इट. Currently we are taking class 8th book 2 of mathematics chapter number 1 fractions in disguise. तो page number 7 I have noted for you. This is something which has come in the exam, जो आपके एग्जाम्स में appear हुआ था. So let's see if we can have some advantage from here. The conversion of percentage, I think this is something which I should not waste much time. So out of 100, if I say 25% is 25, 10% of 100 is 10, 20% of 100 is 20. So this is how we calculate the percentage. So 5% of 100 is 5. So 200, if I have to calculate 25 by 100 of 200, so that is straight away 25 into 250. This will be 20, 40, 10. The calculation you guys can do it yourself. Let's see if I have to take out for 80. If I say 25% of 80, so the value comes out to be 20. This is how we calculate the values out of percentage. So any value you guys can find out, that is up to you guys. On next page also we had something for you guys, which the basics of fraction, decimals and percentage. So 100% we can write 100 upon 100. In terms of decimal it is 1.0. 25% we can write 25 upon 100. In decimal we can write 0.25. So this is again basic thing which you guys can do. Page number 15 I have marked something for you. But yeah, this is something which is important for you guys. इस तरह के formulas के ऊपर based आपके questions आए हुए हैं आपके एग्जाम के अंदर. The percentage increase, that is amount of increase divide by original amount on the base multiplied by 100. Let's see the example on this, ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए पर आराम से कर पाओ. Suppose the price of 1 kg tomato 3 years ago was 30, the price now is 42, the increase in the price is 12. But in terms of percentage if I talk about, जो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल वॉज 42, इनिशियल वॉज 30, द डिफरेंस इज 12 डिवाइड बाय व्हाट वॉज इनिशियली, ओरिजिनली पहले क्या था, पहले वॉज 30. सो 12 by 30 multiplied by 100. From here I may get my answer quite easily. 4 into 10, 40%, that is the answer. So you have to understand whenever they talk about increase या decrease पूछते हैं आपसे कि कितना बढ़ गया कितना कम हो गया, तो in that case you need to use the formula that percentage increase or decrease is the change in the value divide by initial value. हमेशा पहले वाली वैल्यू आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा. After this we have on the page number 18 another formula which is being used in your CTET exams paper 1 and paper 2. On page number 18 अगर डिटेल में परसेंटेज करना चाहते हो, I have a video of percentage on my channel, you guys can go through that. The profit, okay, so profit and loss is again a chapter which I have there. On my channel, but just let's revise it a bit. तो परसेंट एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं. Here it is. सो एक पहले तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट जो है फ्रॉम द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं क्या होता है. सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ से वो जाती है होलसेल स्टोर के अंदर और उससे वहाँ जाती है रिटेल स्टोर के अंदर एंड देन अ कस्टमर गेट्स इट. तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करती है, उसके ऊपर एक मार्क्ड प्राइस लगा देती है.
एंड उसी मार्केट प्राइस के ऊपर होलसेलर आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट लगा देता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको कम करके देता है, वहाँ से वो रिटेल स्टोर पे और थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के दे देता है। तो जब आप शॉप पे जाते हो तो वो एमआरपी दिखाता है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने लगाया हुआ है, और उससे कहीं कम प्राइस पे उसने होलसेल को बेचा, होलसेलर को इसने उसने उससे भी थोड़े से ज़्यादा मार्जिन रखकर अपना रिटेल वाले को बेचा, और रिटेल वाले ने अपना मार्जिन रख के आपको बेचा। तो वो कहता है कि मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, मैंने आपसे सेलिंग प्राइस लेकर प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स गो स्ट्रेट अवे। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया आपको, द पिक्चर बिलो शो द जर्नी ऑफ अ स्वेटर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर। जो मार्केट प्राइस था दैट वाज 255, सेलिंग प्राइस 253 और कॉस्ट प्राइस 230। इसका क्या मतलब हुआ? तो जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने मार्क किया उसके ऊपर प्राइस मार्क किया 255 रुपीज़, लेकिन उसने दिया किसी और अमाउंट में, वट एवर अमाउंट होलसेलर गॉट इट। रिटेल स्टोर में जब आपके पास वो शर्ट या वो स्वेटर आया तो उस पर 255 रुपीज़ लिखा हुआ है, आपने 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और उसको सेल कर दिया 253 रुपीज़ में, तो कस्टमर उसको 253 रुपीज़ का लेकर चला गया। तो ये मेरा मार्क्ड प्राइस इफ़ आई टॉक अबाउट, एंड 253 इज़ माई सेलिंग प्राइस। और एक्चुअली में जब रिटेल ने होलसेल वाले से ख़रीदा तो उसका कॉस्ट 230 रुपीज़ था। तो मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो कितना प्रॉफिट कमा लिया। अब जो प्रॉफिट कमाया दैट वाज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 253 माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज 230, टोटल हो गया 23 रुपीज़। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंटेज की, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कमाया जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ना प्रॉफिट है मेरा 23, सीपी है मेरा 230 विच इज मेंशन्ड हियर, मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट मीन्स जो प्रॉफिट कमाया गया 10% प्रॉफिट एट द एंड कमाया गया। सेम एग्जांपल एक और है आपके पास जहां पे मार्केट प्राइस 310 है, सेलिंग प्राइस 300 है। मैंने सारा कुछ एक ही उससे कर दिया ताकि आप लोग इसको इजीली समझ पाओ। अब इन्होंने इसी चीज़ को आगे और जाके डिराइव किया हुआ है, तो अपने अपने मार्केट प्राइस लगाए हुए हैं। तो आई डिड नॉट वेंट टू ऑल दिस डिटेल्स ताकि हम इस पार्ट को छोटा रख पाएँ। तो उस छोटे पार्ट को रखने के लिए मैंने आपको ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने 250 रुपीज़ का उसको मार्क करके रखा हुआ था, उसने होलसेलर को दिया होगा, लेट्स से 200 रुपये में दे दिया होगा, हम ये मान लेते हैं। तो उस 200 रुपये में जब उसने रिटेल वाले को लिया तो रिटेल वाले ने उसको 230 रुपये में लिया हुआ है, 230 रुपीज़ में लिया हुआ है। तो मैं उसको इस तरह लेके चल रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग इट एज दे हैव गिवन इन द एनसीईआरटी बुक बिकॉज टाइम कम है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू राइट अवे। सेकेंड केस आप मान सकते हो, आप इसको एक शॉपकीपर का केस मान लो कि आपके पास, अब इन्होंने जो शो किया ना आपको, इन्होंने तो किया कि चलो होलसेलर वाले ने 253 का ले लिया तो उसका वो सीपी हो गया, और जब यहाँ से उसने आगे सेलिंग प्राइस 300 पे किया तो रिटेल सेल वाले ने उस पर 300 रुपये का अपना कॉस्ट प्राइस हो गया, कस्टमर ने 480 का खरीदा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग विद इट। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। लेट्स सी अ सिंपल क्वेश्चन ऑन दैट। अब इन्होंने बताया किशन लाल ने कितना स्वेटर पे प्रॉफिट कमाया, तो इन्होंने ऊपर वाली इक्वेशन ली हुई है कि किशन लाल रिटेलर है, उसे 300 रुपये का सेलिंग प्राइस है, 430 में कस्टमर लेकर गया, डिफरेंस 130 हो गया, लेकिन उसने खरीदा था 300 रुपये का, तो उसका जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, 43.3%। दैट द सेम थिंग विच वी हैव, जो भी आपको समझाया विद जस्ट वन एग्जाम्पल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी। राइस स्टॉक इन रघु's प्रोविजन स्टोर इज गेटिंग ओल्ड, ही हैड परचेज द राइस एट 35 रुपीज पर केजी, टू क्लियर हिज स्टॉक ही सेल्स 10 kg राइस एट 300 रुपीज, फाइंड आउट द परसेंटेज लॉस। तो 35 रुपये का पर केजी उसने बाई किया था, दिस वॉज द कॉस्ट प्राइस ही हैड। सेलिंग प्राइस किया 10 kg 300 रुपीज़ का, तो 1 kg उसने बेचा 30 रुपीज़ के अंदर। तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। अब मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं लॉस होने वाला है। लॉस कितना हो रहा है? 5 रुपये का हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, 5/35 पे होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100,
1/7, 1/7 दैट मीन्स 14.28% का मुझे लॉस होने वाला है स्ट्रेट अवे। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आए तो यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि दो आर्टिकल्स है, उनका सेलिंग प्राइस इतना है, एक पे प्रॉफिट हुआ एक पे लॉस हुआ। सो ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज कम, तो थोड़ा सा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। Shamlal had procured decorative vases at 2650 per piece. One of the piece was slightly damaged. She decided to loss of 18% पे बेच दिया. How much she get by selling this price? तो उन्होंने जो बाई किया था वो 2650 पे किया था। अब उनको जो लॉस है वो 18% का हो रहा है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। और अगर आप लॉस कर रहे हो तो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? यहाँ पर आपके पास CP है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको गिवन है लॉस, तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। CP इज इक्वल टू 2650 हो गया, 100 माइनस 18 82 हो गया, डिवाइड बाय 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 इंटू 2, 5 इंटू 5 53, 2 इंटू 41, तो 53 इंटू 41 दैट शुड बी माई आंसर। इन्होंने इस तरह से किया, ये रहा 2173, दैट इज द आंसर दे आर गेटिंग। ठीक है जी। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आया हुआ है पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर, सो प्लीज इंश्योर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से कर लेना। बेसिक ही आना है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस PDF, NCERT की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। टैक्सेस जो होता है, टैक्सेस हमेशा आपको पे करना होता है व्हेनेवर यू गेट अ बिल, तो जो भी आपका बिल होता है, जो भी आपका अमाउंट लिखा होता है टोटल के ऊपर, एट द एंड आपका टैक्स लग जाता है। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड अ क्वेश्चन हियर। एक आधा क्वेश्चन और कर लें अगर। सिंपल जो फॉर्मूलाज ऊपर लिखे हैं उन्हीं के ऊपर बेसिक है और कुछ भी नहीं है। एक डिस्काउंट वाला कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑन डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में क्या कहता है? अ क्लोथिंग शॉप ऑफर्स अ 25% डिस्काउंट। अब एक मार्क प्राइस है, डिस्काउंट उसके ऊपर मिलता है हमेशा, जो टैग लगा होता है ना आपके टी शर्ट्स के ऊपर या जीन्स के ऊपर। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट इज 300, तो जो प्राइस था 300 रुपीज़ था, उन्होंने बाई करना है, डिस्काउंट दिया 25%। अब देखो डिस्काउंट 25%, अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मिलता है आपको MRP पे, तो डिस्काउंट परसेंट होता है आपका डिस्काउंट अपॉन MRP मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो सेलिंग प्राइस होगा, आप सोचो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा इस तरह का। सेलिंग प्राइस होगा तो क्या होगा? अगर आपने 100% आइटम है और उसके ऊपर 25% डिस्काउंट ले लिया, तो आप कितना पे करोगे? आप 75% ऑफ द MRP पे करने वाले हो। तो मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 300। मेरा मार्क प्राइस 300 है, मतलब मुझे वो शर्ट 225 एज ए कस्टमर मिल जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। तो सिर्फ थोड़ा सा हम ब्रेन यूज करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो बड़े आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेट मी फाइंड एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखते हैं डिस्काउंट के ऊपर एक और क्वेश्चन है। सैमसंग बॉट अ कार फॉर 4,40,000 आफ्टर गेटिंग 15% डिस्काउंट। अब सोचो 15% डिस्काउंट ले लिया, उसके बाद ये पे किया, मतलब ये जो अमाउंट है ये 85% ऑफ मार्क्ड प्राइस है। कितना है? 4,40,000 है। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेट्स सोल्व इट। 85 बाय 100 ऑफ मार्क्ड प्राइस दैट इज इक्वल टू 44 एंड 4 जीरोस। तो मार्क्ड प्राइस आपका हो गया 4 जीरोस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 85। ठीक है, आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, तो वो आपका आराम से निकल जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है जिसमें
दो आइटम्स है, उन पे एक पे प्रॉफिट है, एक पे लॉस है, अलग अलग है। ये कर लेते हैं, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल तो सेम क्वेश्चन आया हुआ। मिल्कमैन सोल्ड टू बफेलोज फॉर 80,000 ईच, वन ऑफ देम ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, अदर अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो सेल किया 80,000 ईच, तो पहले वाले, अब सीपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, दैट इज एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, या फिर अगर लॉस गिवन है गोना बी 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो आपका जो सीपी होगा फर्स्ट आइटम का, दैट इज सेलिंग प्राइस विच इज 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय पहली पे हो रहा है प्रॉफिट दैट इज 105, और जो दूसरी वाली है उस पे है लॉस ऑफ 10%, तो सेकंड वाली का कॉस्ट प्राइस जो होगा दैट विल बी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 90। इन दोनों को आपने ऐड करना है और टोटल आपके पास जो अमाउंट है वो है 1,60,000 आफ्टर सेलिंग देम। तो जो भी इनको कैलकुलेट करके आपकी वैल्यूज आएंगी उनको ऐड कीजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है दैट यू गाइस कैन डू, आई बिलीव उसमें कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं है। ग्रोथ एंड कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए। और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली की बजाय सेमी ईयरली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअल एंड क्वार्टरली या 4 मंथ में एक बार कैलकुलेट हो रहा है, वो भी क्वेश्चन आए, वो भी करेंगे अभी। पहले समझते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट है, पैसे, अमाउंट मनी है जो पे किया जाता है बिकॉज यू हैव बोरोड सम मनी। तो जिस परसेंटेज पे उसको बोरो किया जाता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, जो अमाउंट आपने बोरो किया वो आप प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसके सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला, और जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आपका दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हर साल इंटरेस्ट आपका सेम मिलने वाला है, प्रिंसिपल आपका सेम आने वाला है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग। ऑप्शन 2 है कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट हर साल ऐड कर दिया जाता है, तो इसका भी एक अलग से फॉर्मूला होता है विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर टाइम। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि टाइम 2.5 ईयर्स है, तो अब 2.5 पावर में कैसे लेके जाओगे, अभी क्वेश्चन आएगा तो वो भी देख लेते हैं। तो उन केस में हम करते क्या हैं, अगर आपको हाफ ईयरली है इंटरेस्ट पे करना है तो क्या करते हैं, P इंटू 1 प्लस आर को हाफ कर देते हैं, R बाय 200 हो जाता है, और टाइम जो ईयर्स में गिवन है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है। अगर यही हमारा क्वार्टरली हो, क्वार्टर में एक बार आपने इंटरेस्ट पे करना है लिखा होता है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाय 400, R बाय 4, साल में 4 बार इंटरेस्ट देना है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और टाइम जो होगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 6 मंथ है 1/2 ईयर्स है 1/2 इंटू 4, 2 टाइम्स यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑन द क्वार्टरली बेसिस। तो इस तरह से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। बाकी PYQs में क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं, अगर कोई आता है तो आई एक्सप्लेन दैट राइट अवे। फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिया है, मंथली होगा तो डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया आपको बड़ा सिंपल सा, लेट्स सी जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन है कुछ वैसा ढूंढते हैं, इफ आई कैन फाइंड वन। चलो पहले ये वाला करते हैं फिर वो ढूंढ लेते हैं, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं पहले एक बार ना। यहाँ पर ऑफर्स इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कंपेयर हाउ मेनी वन इफ दे डिपॉजिट 20,000, ये P हो गया। टाइम पीरियड T हो गया।
पहले आपने निकालना है विद कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग। तो अगर विदाउट कंपाउंडिंग है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल मेरा 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एम हैविंग 10, टाइम आई एम हैविंग 2, डिवाइड बाय 100, 10 से 10 कैंसिल, दिस इज कैंसिल, दैट मीन्स टोटल 4,000 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट आने वाला है। तो मेरा जो प्रिंसिपल हो जाएगा उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा जो अमाउंट हो जाएगा वो 20,000 प्लस 4,000, 24,000। दिस इज हाउ आई फाइंड आउट द माई आंसर ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस। और अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, एक ही बारी में आंसर निकल आएगा। फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर T। तो प्रिंसिपल आपका होगा 20,000, 1 प्लस आर आपका है यहाँ पर 10 अपॉन 100, टाइम है 2, सो दिस विल बी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 10 का स्क्वायर, तो इंटू 11 बाय 10, 20 से 20 कैंसिल, वी गेट 200 मल्टीप्लाइड बाय 121, विच कम्स आउट टू बी 24,200। नाउ द आंसर गोइंग टू बी 24,200। 200 रुपये एक्स्ट्रा आने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा फ़ायदा होता है लेने वाले का, जो इंटरेस्ट ले रहा है उसका, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल गया ना। लेट्स सी इफ आई कैन गेट अनदर क्वेश्चन जहां पर टाइम जो हो आपका वो फ्रैक्शंस में हो। अच्छा, डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन आ जाए बाय द वे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज पॉपुलेशन डिक्रीज सब कंपाउंड इन पाउंड के फॉर्मूला पे फॉलो करते हैं। तो अगर डिक्लाइन आ जाए तो 1 माइनस आर बाय 100 रेज टू पावर टी किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, दैट इज द ओनली चेंज, वी हैव नथिंग एल्स। जैसे ये क्वेश्चन है ना, a TV is bought at a price of 21,000, after 1 year the value of TV depreciated by 5%, तो what is the value of TV after 1 year, तो multiplied by 95 by 100, straight away you get the answer। ट्रिकी परसेंटेजेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ट्रिकी परसेंट में क्या कह रहा है कि चलो आपके यहाँ पर एक सेल लगी हुई है, सेल क्या लगी है, कस्टमर 2 ऑप्शन ले सकता है। एग्जाम्पल नंबर 12, ये आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर करेगा। एक बेकरी है केकली, वो ऑफर करती है 30% प्लस 20% डिस्काउंट ऑन ऑल केक्स, मतलब देखने को लग रहा है 50 है बट 50 है नहीं। और एक बेकरी है जो स्ट्रेट अवे 50% डिस्काउंट ऑफर करती है, तो आप किससे लोगे? ऑफकोर्स आपको किससे लेना चाहिए? ऑफकोर्स आप इससे लोगे, ना कि इससे। क्यों फ़र्क है? हाँ बिल्कुल है। कैसे है? लेट्स से 100 रुपीज़ प्राइस था, पहले वो 30% डिस्काउंट देगा, 70 रुपीज़ का आइटम बच जाएगा, फिर वो 20% उसके ऊपर डिस्काउंट देगा, 14 रुपीज़ माइनस होंगे, तो वो आइटम आपको 56 रुपीज़ की मिलने वाली है। और जो ये भाई साहब है सेकंड वाले, ये आपको सीधा सीधा 100 रुपीज़ की चीज़ पे 50 रुपये कम करके 50% डिस्काउंट दे देगा। तो किससे फ़ायदा हुआ लेने का? तो कभी भी मार्केट में जाते हो वहाँ लिखा होता है 50% प्लस 50%, कभी आज तक फ्री में चीज़ मिली? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि 50 प्लस 50 का मतलब है पहले आपने 50% डिस्काउंट दिया, फिर बचे हुए अमाउंट पे दोबारा 50% डिस्काउंट दिया। लिखने का तरीका है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, मार्केट में जब भी जाइएगा एक ही बार जो डिस्काउंट है वही ले लीजिएगा। After this, in this we have, I think in this chapter there is one thing more, that is it. This chapter has this much information only into it. आगे चलते हैं, let's pick up the chapter number 2. Now chapter number 2 में there are 4 to 5 pages which I marked. तो आपके एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, फॉर्मूलाज आपको दे दिए। आपके अकाउंट में सिंपल कंपाउंडर्स के ऊपर आए हैं, वो भी आपको फॉर्मूलाज दे दिए। तो वी आर जस्ट मार्किंग अप दोज इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसके अलावा ज़्यादा मार्कअप नहीं किया मैंने, बिकॉज दिस लास्ट मोमेंट है, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम और इवन माय टाइम। सो बुद्धा एंड पाइथागोरस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर अबाउट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सबको मालूम है।
that is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. That is a Pythagoras theorem. So first of all, page number 5 I have a formula for you. तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है. उसका हाइपोटेन्यूज एक्चुअली एक स्क्वायर ही बनता है बाय द वे, अगर हम देखा जाए. क्योंकि अगर आप एक आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, दिस इज द आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये मेरा राइट एंगल है, ये मेरी साइड्स इक्वल हैं. सो दिस साइड बिकम्स √2 इंटू ए मतलब मेरा साइड हो गया. ये फॉर्मूला डिराइव किया हमने ना. लेट्स से अगर ये भी मेरा ए था, दिस इज ऑल्सो ए. आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, दोनों साइड्स इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो नहीं सकता. नाउ दिस हाइपोटेन्यूज इफ वी हैव दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2a. और अगर मैं इसी हाइपोटेन्यूज पे आइसोलेस ट्रायंगल को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, सो दिस बिकम्स अ स्क्वायर एंड दिस इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर. उसका फॉर्मूला तैयार हो जाता है आपके पास. ये बना कैसे है, बड़ा सिंपल सा फंडा है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो दिस वाज अ थ्योरम गिवन बाय पाइथागोरस. एक्चुअली दिया तो थ्योरम ये हमें वाज गिवन बाय मिस्टर जो मैथमेटिशियन थे बुद्धियाना, उन्होंने दिया था, बाद में पाइथागोरस ने रिकॉग्नाइज किया. So that is why this is famous as Pythagoras theorem. So on this Pythagoras we have, after page number 5, page number 14 I have marked, there was some question I believe. This was the theorem, a right angle triangle, which I just marked above. So it is a right angle triangle at side lengths ABC, then C is the length of hypotenuse. So Pythagoras, as per the Pythagoras, a square plus b square equal to c square, or perpendicular square plus base square, that is equal to hypotenuse square. After this we have on the page number 16, I have something marked for you guys. Right triangles having integer side lengths. Okay. ट्रिपलेट्स, यस, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ये अगर आपको पता लग जाए तो दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू. आप देखो 3 4 5, इट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. परपेंडिकुलर और बेस, बेस और परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. द लास्ट नंबर इज अ हाइपोटेन्यूज. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. 5 12 13 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है. 8 15 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट है. 7 24 एंड 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट है. 12 35 37 Pythagoras triplet है. 15 36 39 that is also Pythagoras triplet. And in Pythagoras triplet, doubt है 2 मिनट. So in this Pythagoras triplet when we say, हमें ये फ़ायदा है इसको पढ़ने का कि आपके एग्ज़ाम में अगर बाई चांस ट्राइंगल का एरिया निकालना आ जाए, या कोई भी आपके सामने ऐसे ही नंबर्स आ जाते हैं जहाँ पर आपको मालूम है 2 का स्क्वायर, 2 टर्म्स का स्क्वायर तीसरे टर्म के स्क्वायर के इक्वल बनता है, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इट्स राइट एंगल ट्राइंगल. कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं. एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा बिफोर आई गो अहेड. ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं सारे 6 इन्होंने दिए हुए हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो इन एनी इंटीजर्स, लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे यहाँ पर है 3 4 5, सब नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से किया, 6 से किया, 10 से किया, 20 से किया, ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट बनने वाले हैं. दे ऑल आर पाइथागोरस ट्रिपलेट. इन सब नंबर्स के साथ सेम कहानी आएगी, तो इसको ध्यान से नंबर से एक बार देख लो. सुलभ सूत्र sorry. So that is what exactly the verse 1.13 given by Buddhayan. इस चैप्टर को बस फिनिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. तो द लास्ट थिंग विच वी हैव, अच्छा ये भी एक बहुत बढ़िया आपको पता होना चाहिए, जो nth ओड नंबर होता है वो 2n-1 होता है. दैट इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन. और सम ऑफ फर्स्ट n-1 ओड नंबर्स यहाँ तक है, और ये n हो गया. तो सम ऑफ फर्स्ट, इसको मैं एक बार रब करता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ओड नंबर्स जो होगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स वो n स्क्वायर होता है. आप ऐड करके देख लो, 1 का स्क्वायर 1 तो एक टर्म है. सेकंड ओड नंबर 3 है, 1 + 3 4 हो गया, 2 टर्म्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4. आप नेक्स्ट टर्म 5 ले लो, 3 ओड टर्म्स है, 1 + 3 4 + 5 9, टोटल हो गया 9.
दैट इज 3 का स्क्वायर। तो जितनी टर्म्स हैं उसी का स्क्वायर कर दो, सम ऑफ n ओड नंबर्स आ जाएगा। ऐसे ही सम ऑफ n इवन नंबर्स भी होता है। लेट मी सी इफ दैट इज आल्सो गिवन हियर। अच्छा वो नहीं दिया हुआ, तो यू गाइस कैन राइट इट डाउन। सम ऑफ जो ओड नंबर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल आप 2 ले लो, तो 2 का टोटल 2 है, तो n हो गया मेरा यहाँ पे 1 फर्स्ट टर्म, 1 इंटू 1 प्लस 1 2। अगर दो टर्म्स हैं इवन नंबर 2 एंड 4 6 हो गया, तो n की वैल्यू 2 हो गई, 2 इंटू 3 6 हो गया। अब थर्ड टर्म ले लो 6, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई, n3 3 इंटू 4 12। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स आप कह सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर वाज n स्क्वायर, जो हमने ऊपर किया था। The last thing which we have here on this page, this chapter, that in the summary page we have पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया गया है हमें, पाइथागोरस थ्योरम दी गई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो साइड है, थर्ड साइड, उसका हमें मेजरमेंट दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल आई एम टॉकिंग अबाउट। रूट 2 की वैल्यू 1.414 और 1.415 के बीच में इर्रेशनल नंबर है, बाय द वे पता होगा आप लोगों को। And one more thing, the equation a raised पर n plus b raised पर n equal to c raised पर n में कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अगर आप n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 कर दो तो। दिस इज फर्मेट लास्ट थ्योरम वी कॉल इट। सो इस चैप्टर से इतना ही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, चैप्टर नंबर 3। Now chapter number 3 which we have something on page number 15 here. Let's see page number 15. I think that will be a summary page. Last page होगा। एक चैप्टर और 2 चैप्टर और हैं इसके बाद, and the complete revision till class 8th and will be done in this particular part. Now summary says ratio के ऊपर ही है। Okay, why did I mark it? What kind of question was? अच्छा ये था, ठीक है। देखो 2 चीज़ें चेक करनी है अपने को इस समरी से। पहली बात हमें ये देखना है जो रेशियो इन द फॉर्म a is to b is to c is to d है, ये इंडिकेट करता है कि एवरी एक यूनिट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, b यूनिट ऑफ सेकंड, c यूनिट ऑफ थर्ड क्वांटिटी एंड सो ऑन, ये आपको एक रेशियो शो कर रहा है कि कितना कितना प्रोपोर्शन में चीज़ें हैं। तो अगर मुझे निकालना है p/s2 q/s2 r/s एटसेट्रा एटसेट्रा रेशियो में नंबर है, तो मुझे p की वैल्यू निकालनी हो तो टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय p प्लस q प्लस r टोटल वैल्यू, ये हमने पहले भी किया है रेशियो वाले पार्ट में। जो बेसिकली मुझे आपको करवाना है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरी चीज़ बतानी है आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, लेट्स से 2 चीज़ें हैं, एक x इंक्रीज अगर होती है वो रिजल्ट करती है y के भी इंक्रीज होने में, या अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल आप मान लो आप 1 kg ऑफ पोटैटो या एप्पल कुछ भी लेते हो, 200 रुपीज़ के एप्पल मान लेते हैं, तो 5 kg अगर एप्पल लोगे तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप हाफ kg एप्पल लोगे तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो अगर आपके क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगर आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो आपका प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज़ कम है दूसरी कम हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा दूसरी ज़्यादा हो रही है। अब इस केस में जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है x1 बाय y1 दैट इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय y2। नाउ हाउ इज दिस कमिंग अप, इसी एग्जांपल को देखते हैं। अब मुझे अमाउंट निकालना है, तो x1 मेरे सारे हमारी हो गई क्वांटिटी और साइड साइड हो गया मेरा अमाउंट। तो x1 बाय y1 मतलब 1 अपॉन आई कैन राइट 200 दैट इज इक्वल टू, अगर मुझे 5 का निकालना है दैट विल बी 5 अपॉन x लेट्स से, और 5 अपॉन y2 जो मुझे निकालना है, तो मेरी y2 की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 5,000 रुपीज़। और अगर ये 0.5 है तो आई विल राइट 1 बाई 200 दैट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन y2। तो मेरा y2 यहाँ से बनकर आएगा 200 इंटू 5 1000 बाई 100 100 रुपीज़।
तो इस क्वेश्चन अगर हम इससे डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ईजिली हो जाते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इसमें कहता है अगर x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज हो रहा है, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मानो पेट्रोल डलवाने जाते हैं, पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपीज़ पर लीटर, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो मेरा कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा, और अगर मेरा प्राइस डिक्रीज हो जाए तो मेरे को ज़्यादा पेट्रोल मिलेगा। तो इन्वर्स रिलेशन है। इसमें जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है x1 इंटू वाई वन दैट इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाय y2। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, और यहाँ पर जो डायरेक्ट रिलेशन था उसके लिए फॉर्मूला मेरा यहाँ पे था। सो दिस वाज द फॉर्मूला आई हैड फॉर डायरेक्ट रिलेशन, एंड दिस इज आई हैव फॉर द इनवर्स वन। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल पेट्रोल का प्राइस लेट्स से टोटल जो है पहले 100 रुपीज़ पर लीटर था, तो 5 लीटर तेल पापा 500 रुपये देते थे, मम्मा 500 रुपये देती थी, 5 लीटर निकाल लाता था मैं, तेल ले आता था मार्केट से। अब अगर प्राइस इंक्रीज होकर 125 हो जाए तो कितना होगा, या प्राइस डिक्रीज होकर लेट्स से 50 रुपये रह जाए तो कितना होगा। तो मैं इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? तो 100 इंटू 5 ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। तो 100 इंटू 5 पहले केस में होगा 125 इंटू y2, तो मेरा y2 निकल जाएगा, दैट इज 4 लीटर्स। तो अब आएगा 4 लीटर। और अगर मेरा प्राइस डिक्रीज हो रहा है 50 इंटू y2, दिस इज 100 इंटू 5, सो नाउ आई एम गोना गेट 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जब हमारे पास रिलेशन डायरेक्ट हो, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ता है, एक कम हो रहा है दूसरा कम हो रहा है, तब तो हम इसको यूज़ करेंगे। और अगर एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, या पहला डिक्रीज दूसरा इंक्रीज होगा, तब हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 2 चैप्टर और रह गए हैं, देन वी गोना एंड इट। फिर हमारा 8th स्टैंडर्ड भी खत्म हो जाएगा सारा, देन विल मूव फर्दर। चैप्टर नंबर 5 आफ्टर दिस वी हैव 4 चैप्टर में आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग विच केम इन योर एग्जाम्स इन द लास्ट 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले 2023, 24, 25 में हुए। लेट्स सी इफ आई कैन गेट एनीथिंग इन द 5th चैप्टर। मार्क किया हुआ है मैंने पेज नंबर 31, आई थिंक समरी ही होगी। सो 31 पे इफ आई चेक, चैप्टर नंबर 5, ओके, दिस वाज अबाउट द मीन। मीन मीडियन मोड हमने लास्ट पार्ट 3 में कर लिया है। एक पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा मुझे दिखा तो आई जस्ट नोटेड इट, दैट व्हेन वी सो व्हेन वैल्यूज आर ग्रेटर देन द मीन, अगर इंसर्ट कर दी जाए, पूरा एक सैम्पल स्पेस है, लेट्स से आपकी क्लास में टेस्ट हुआ, सब बच्चों के मार्क्स आए आउट ऑफ 100 80, 85, 80, 90 तक, 80 और 90 की रेंज है, सब बच्चों के मार्क्स उसी में आए हैं। तो कहते हैं कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन द मीन और एवरेज आपकी आई लेट्स से 80 और 90 के बीच है, लेट्स से 87 एवरेज आ गई, तो आपकी जो एवरेज है वो 87 है, और आपके पास 10 स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर जो स्कोर लेकर आए 80 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, तो एवरेज आपका 87 हो गया। अब इस एवरेज के बाद कहते हैं अगर मैं एक वैल्यू ग्रेटर देन एवरेज, मतलब अगर मैं इस 10 नंबर के साथ एक और बच्चे के नंबर ऐड कर दूं जो 88 होगा, तो मेरा एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं 88 की जगह 86 नंबर या 85 नंबर ऐड कर दूं तो मेरा एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द काइंड ऑफ फिनोमिना यू शुड नो। सेम चीज़ हैपन होती है मीडियन के साथ, मोड में सेम चीज़ नहीं होता है ऐसे, मोड इज समथिंग डिफरेंट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये सेम फिनोमिना मीन और मीडियन में काम आने वाला है। आफ्टर दिस वी आर द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 बुक पार्ट 2, लेट्स गो ऑन दैट and then we will just end this part also। फिर एक बार आप PYQs की वीडियोस देख रहे हो, मुझे बताना कि सारे क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं, मैक्सिमम। चलो इस पे मैंने पेज नंबर नोट किया आपके लिए, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे क्या था, पेज नंबर 2 पे था ओके फॉर्मूलाज, वेरी नाइस, फटाफट रिविजन हो रही है, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ, देन एग्जाम्पल्स आई डोंट थिंक वी नीड टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि इसके ऊपर भी मेरे पास अलग से वीडियो है आप लोगों के पास, मेंसुरेशन 2D, वो भी आप देख सकते हो।
मेंसुरेशन 3D भी है, एरिया वॉल्यूम वगैरह। इसमें अच्छा एक चीज़ जरूर बताऊंगा मैं आपको अभी एट द एंड, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। क्यों मैंने चैप्टर मार्क किया, मुझे याद आ गया। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्वेश्चन आपका, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज हुआ है। इसके अलावा पेज नंबर 15 पे कौन सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी आपका फॉर्मूला यूज है आई बिलीव, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेस इंटू हाइट होता है। देन पेज नंबर 18, देखो डिटेल्ड में करने में कर सकते हैं, मेरी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हैं, आप देख सकते हो, बट आई वांटेड कि हम एक बार सारे सारे मेन फॉर्मूलाज कर लें। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। देन पेज नंबर 20, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको। और बताओ, मतलब आई हैव पेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू फाइंड आउट कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी की अगर हम बुक्स ध्यान से पढ़े तो बहुत कुछ, मतलब सब कुछ ही आप आराम से कर सकते हो। पेपर में कुछ है ही नहीं ऐसा जो नहीं कर सकते आप। कुछ पैडागोगी की थ्योरीज हैं ऑफ कोर्स, वो हमने कवर नहीं की है बिकॉज इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो डिटेल में समझानी पड़ती है। सो वी हैव मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पार्ट, ही हमने कोशिश की, हम इसमें चलते हैं मेन। The summary was here. Area of a triangle half into base into height. The area of any polygon can be evaluated by breaking into triangles. Area of parallelogram base into height. Rhombus half into product. ये सेम जो हमने ऊपर फॉर्मूलाज किए वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। So that is ending the class 8th mathematics books for you. तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा था वो अब कर लेते हैं। देखो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, वो 3D से आए हुए हैं। वो नेक्स्ट वीडियो जो अगर आई ट्राई टू मेक होगा तो उसमें आपके काम आएगा। बट लेट मी जस्ट गिव द इन्फॉर्मेशन टू यू। जब भी आप एक 2D फिगर को 2D फिगर में कन्वर्ट करते हो, मतलब जब हाइट नहीं होती है उसके अंदर, तो हमेशा ध्यान रखना उसका पैरामीटर हमेशा सेम रहता है, पेरीमीटर आई मीन। और जब भी आप 2D फिगर को 3D फिगर में कन्वर्ट करते हो या 3D को 2D में कन्वर्ट करते हो, तो उस केस में एरिया सेम रहता है। और जब भी आप 3D फिगर को 3D फिगर में कन्वर्ट करोगे तो उस केस में आपका वॉल्यूम सेम रहता है। अभी 9th और 10th क्लास की मैथ्स की बुक्स करनी बाकी हैं, ध्यान रखना। उसके लिए भी वी आर ट्राई टू गेट बैक टू यू बाय टुमारो और इन नाइट टुडे, इट्स नाइट टू नाइट ओनली। हम कोशिश करूँगा कि वो भी आज ही कर दें। In case of any doubts you guys have, please let me know in the comment section and do subscribe us so we can stay motivated and keep helping you out. And please share it with your friends, your known ones, so they can also get help and revise all the concepts from the NCERT for the CTET exam. So अभी के लिए इतना ही है. Thank you so much for watching. Do like us, comment in the bar below, comment section below, and thank you so much. That is it for today. Wish you all the very best for tomorrow and day after tomorrow's exam. Do well. Thank you.